हमारे साथ जुड़े रहो. Actually, I'm early, 4:58, and I told everybody that I will be joining at 5 p.m. Hi Manvi, can you just send me the request so then we can have this chat? Oh, people think it's pasina. It's not pasina. It's not at all pasina. Now can you see? It's the glow. Sorry, just 1 second, guys. Just secret to my skin. I drink water. I work out. I do yoga. Genetically blessed है मेरी skin भी. And बस try to be positive. Hi Riddhi. Hi everyone. केम छो? I'm just waiting for Manvi to Manvi, I can't see your request at all because there are so many people sending the request. I think I'm missing Manvi's request. Manvi, I still can't see your request. Manvi, did you accept it? Finally, Manvi. Finally, hi. Because I'm getting so many requests, your request is getting lost. I know, and I would have to exit and reset. Oh exit yeah, and reset. yeah. So I How just are want you? to we have good amount of viewers right now. And I want ज़्यादा से ज़्यादा viewers हमारे साथ जुड़े ताकि हम लोग मिलकर साथ में एक awareness create करने की कोशिश करें जो लोगों को नहीं पता है. Right. But I want you to start, and then I will also say what I feel like telling the world. Right. You must have noticed for the last little while, the hatred for dogs, जी specifically dogs, has जी increased. And मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि रूट कॉज पे जाइए, ओके? जी बिकॉज हम कॉन्शियसनेस के साथ, विवेक, सद्बुद्धि, एजुकेशन, पैसे के साथ हम लोग मासूम जानवरों को ब्लेम करें, दैट इज नॉट वेरी नाइस. दे डोंट गो टू correct. स्कूल, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस अर्बनाइज्ड वर्ल्ड वर्क्स. सो सबसे पहले तो मैं हम सबको उस तरह से ब्लेम करूंगी दैट वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड अडॉप्ट. दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन, जी राइट? हम लोग आसानी से बोल देते हैं सड़क का कुत्ता. वो सड़क पे इसलिए है बिकॉज हम उसे गोद नहीं करेक्ट. देते, राइट? और वो सड़क पे इसीलिए क्योंकि न्यूटरिंग नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जैक्टली, बॉर्न हो रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड इन रिसेंट टाइम्स, अभी ही मैं हाल ही की बात कर रही हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर हमारे नोएडा में ही फीडर्स को, लेडीज को पकड़ के मारा गया है. एंड जैसे माँ बेटी है, उन्हें पकड़ के मारा है, आदमी उन्हें मिलके मारा है. एंड आई हैव सीन women of that society cheering them, और मारो. And another old lady was beaten up, and these kind of things are happening. Now my question to people is that, okay, it's been 75 years of independence. What were our planning and programs for animals? ऐसा तो है नहीं कि हम हर प्रजाति को खत्म कर देंगे. हमारी इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हम सारी जमीन खरीदते जाएंगे. आई एम ऑल फॉर अर्बनाइजेशन, I am all for development, but at the same time I can't say that, okay, this is a forest land, this is a no man's land,
today I plan to make a hospital or a college or a metro station over here. Okay, whatever animals are existing over here, भाड़ में जाए, इनको खत्म कर देते हैं. तो सबसे पहले तो people like us, these colonies like Gore City and all, they need to think that इतना बड़ा सा लैंड जिसपे हमने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, आप बताइए जानवर आके अपने लिए प्रॉपर्टी कैसे खरीदे? वो कैसे बोले कि मेरे हिस्से की जमीन कहाँ है? आप हिस्से की जमीन भी नहीं दे रहे, फिर आप बोल रहे हैं खाना भी नहीं खिलाना, खाना खिलाने वालों को भी मारा जाएगा. सो आई थिंक द मेन थिंग इज अडॉप्शन, एंड उससे भी बड़ी चीज है स्टरलाइजेशन. And I live in Delhi. I've been working in Delhi, and I can only talk about Delhi. We do have MCD units. सरकार की तरफ से योजना है, 13 यूनिट्स हैं जिनको स्टरलाइज करना है डॉग्स को. Now, अब ये सरकार का भी फर्ज बनता है to look into it कि पिछले 10 साल से स्टरलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? Where is that money going? There has to be accountability, right? Totally, जी. So this is the main problem, where intelligent people, politicians, educated people, whoever are going around and spreading this negativity कि खत्म करो इनको, खून करो, finish them, वो एक बार सोचें कि आज एक प्रजाति को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी प्रजाति है वो भी हमें बता दीजिए, लिस्ट बना लीजिए. और लेट्स work intelligently like educated people and think of coexistence. And Karishma, I want to put this as an example. I've been doing this work for the last 4 years. मैंने एक गांव को गोद लिया था, and मैं बहुत proudly बोल सकती हूँ, एक औरत होके एक एम्बुलेंस के साथ 80% population हमने कंट्रोल कर ली है stray dogs की. And for the last 2 years, there has not been a single rabies case in my village. So if I can do it, I'm very sure the government can do it. वही ना, हमको क्रिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए क्या योजना करनी पड़ती है. पीपल डोंट नो. लाइक एज आई टोल्ड यू दिस मॉर्निंग ऑल्सो, जब मैं छोटी थी मैं सिर्फ सड़कों पे कुत्तों को देखती थी, ये नहीं सोचती थी कि वो खाना कहाँ से खाते हैं, पानी पीते हैं कि नहीं, उनको खाना मिलता है कि नहीं. ये सब मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं था. जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है, आपको शायद लगाव होता है एनिमल से या तो नहीं होता है. 2 चीजें हैं. आप दबाव नहीं डाल सकते हो कि नहीं भाई मुझे आप एनिमल्स को पसंद करो. ठीक है, जिसको जिसको एनिमल्स पसंद नहीं है, ओके फाइन, जस्ट कोएग्जिस्ट विथ ईच अदर. आप साथ में रहने की कोशिश करो, क्रूअल्टी मत करो उनके साथ. अगर आपको खाना नहीं भी देना है, क्रूअल्टी ना करो. ये अवेयरनेस मुझे लोगों में पैदा करनी है. और अगर कहीं कुत्ते को या गाय भैंस किसी को देख भी लिया तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चारा, कुछ तो डाल दो. तो ये अवेयरनेस मुझे क्रिएट करनी है लोगों में. क्योंकि हम क्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी है मानवी. आई अंडरस्टैंड इन इंडिया एवरीबडी, इट्स सच अ फास्ट कंट्री, एंड मुंबई स्पेशली इतनी फास्ट सिटी है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं है खुद के लिए, तो क्या एनिमल्स का ध्यान रखेंगे. मैं ये भी समझती हूँ. बिल्कुल, बट कम से कम जो लोग ध्यान रख रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वो सिर्फ दे आर नॉट डॉग लवर्स और काउ लवर्स और एनिमल लवर्स. दे आर एक्चुअली डूइंग समाज सेवा. बिकॉज आप बड़े ध्यान से सोचिए, अगर आज ये कुत्ते जो हैं at the end of the day they have that wild streak in them. Correct. And if they are not well fed, what do you think they will go and eat? और आज मैं किसी इंसान के लिए पूछती हूँ, अगर एक इंसान को 4 दिन खाना ना मिले, चोरी करते हैं वो लोग, ऑफ कोर्स चोरी करते हैं, खाना चुराते हैं, वो ही करेंगे ना. वो लोग एटलीस्ट कर सकते अपने हाथ पैर मुंह खोल के. बेचारे एनिमल्स क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. एंड ये अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत जरूरी होनी चाहिए, स्पेशली एनिमल फीडर्स एंड वॉलंटियर्स के अंदर. बिकॉज poor guys, my heart goes out to them. They are the taxpayers. Absolutely. A part of the tax chunk is kept for animals, for their welfare, but unfortunately it is not reaching them. तो टैक्स भी दे रहे हैं बेचारे, अपनी आमदनियों में से हिस्सा काट काट के अपनी फैमिली लाइफ का हिस्सा. एक औरत जो जॉब करती है, शाम को 6-7 बजे आती है, फिर उसके बाद राउंड पे जाती है, चाहे 10 कुत्तों को भी खाना खिलाती है. आप सोचिए वो कितनी थकी हुई होगी, और उसके बावजूद भी ये कर रही है. एंड अब उसकी आप पिटाई कर रहे हो सड़कों पे. ये पिछले 2 साल से चल रहा है.
एंड यू नो आई रियली रिस्पेक्ट इंडियन मीडिया. उनको भी ये चीजें बाहर लानी चाहिए. व्हेन देयर इज वन क्रूएलिटी केस फॉर डॉग्स, इट्स हाईलाइटेड. मतलब वन केस जहाँ कुत्ते से गलती हो गई, वो तो जानवर है, उससे गलती हो गई, उसको दे ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. Mami, what is the problem now? The stronger species is the king. Humans are strong. तो हम दबाव डालते हैं एनिमल्स पे. इट्स अ चेन, यू अंडरस्टैंड. एनिमल्स जो स्ट्रॉन्गर है वो दूसरे एनिमल्स पे दबाव डालते हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका किंगडम है. दैट्स द प्रॉब्लम. बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब में क्रूअल्टी जो है वो हाईलाइट हो रही है. मतलब हम इजीली एज ह्यूमंस, हमारे पास अगर दिमाग है नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने में, हमारे में ये भी दिमाग है कि क्या सही है क्या गलत है. बट यू नो पावर, आई थिंक दैट पर्सन इज मोर पावरफुल जो अपने साथ जब वो आगे बढ़ता है, जब वो जी. सक्सेसफुल होता है, वो दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ता है, जब सबका भला सोचता है. वो इंसान जो क्रूएलिटी करके लोगों को दबा के मार के, नॉट फॉर अ लॉन्ग रन यू विल बी सक्सेसफुल. एंड आई ऑलवेज से दैट इंडिया में जो इंडिया का धर्म है या जो हमारा कल्चर है, हम यू नो वी फील वेरी प्राउड दैट वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ नेवर अटैकिंग एनी अदर कंट्री. Now we are going to attack our own people, our own, you know, animals जो हमारे पास हैं. Are you going to feel proud about that? Let's take this legacy further. Let's not attack people and let's stick to our culture that, you know, we are अहिंसा को प्यार करते हैं और अहिंसा से जिएंगे. And जी. you know, this is very important to retain your culture, to retain your heritage also. You know, someone's messaging me, why would a stray attack an elderly unless they are provoked? Yeah. Can you please answer this? Because they are not always provoked. If they are hungry, if they have been attacked by somebody, if kids have teased them, if something like, if they are happy, पेट भरा हुआ है, शांति से उनको एक कोना दिया हुआ है जीने के लिए, वो कभी किसी को अटैक नहीं करेंगे. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर डॉग्स, इट्स फॉर स्नेक्स एज वेल. आई लिव इन अ विलेज. बड़ी आराम से, बड़े प्यार से, बिना चीखे चिल्लाए मैं सांप के पास से गुजर जाती हूँ. आई हैव रेस्क्यूड अ जैकॉल, आई हैव रेस्क्यूड अ हाइना. Wow. आप समझिए तो सही, वी आर जायंट्स फॉर Correct. वी आर दीज बिग, यू नो, जायंट्स. आप आते जाते हैं, हाँ करते हो. एंड मेरे खुद के घर के बाहर एक बच्चा रहता है जिसकी पूंछल पे पटाखे बांध के बच्चों ने मारा है. जब भी दिवाली होती है हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि वो भाग जाएगा. ही इज traumatized of पहले patakas. तो वो ही नहीं पता ना लोगों को कि दिवाली में कुत्तों और एनिमल्स को कितनी तकलीफ होती है. प्लीज आप मानवी बताइए कि जब हम सुनते हैं पटाखे की आवाज और जब वो लोग सुनते हैं तो कितना फर्क होता है. 25 गुना ज्यादा ऊंचा सुनाई देता है डॉग्स को. एंड एवरी वाइब्रेशन इन द अर्थ, बिकॉज जब पटाखे फटते हैं, डीजे चलता है, तो मेरे घर की खिड़कियां दरवाजे वाइब्रेट करते हैं. तो वो वाइब्रेशन इन जानवरों के अंदर बहुत बहुत यू नो मैग्नानिमिटी के साथ, मतलब उसके साथ होती है, मैग्नीट्यूड के साथ होती है बहुत ज्यादा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, जैसे ये घोड़ी वगैरह भी जाती है, घोड़ियों का यूज होता है. आज तक हम लोग कभी इन डेप्थ नहीं जाते कि पुराने जमाने में घोड़ी क्यों इस्तेमाल होती थी, वहां नहीं जाना. बट सबको घोड़ी यूज करनी है. मैं जब भी गाड़ी से जाती हूँ मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा इस वक्त वो बेचारा बच्चा ट्रैफिक में हॉर्न्स बर्दाश्त कर रहा है, अपने पैरों में पटाखे बर्दाश्त कर रहा है, डीजे ढोल बत्तियां सब कुछ उसके अंदर बज रही हैं. क्या पूरी बारात में कोई भी नहीं है जो ये सोच सके कि ही मस्ट बी अंडर सो मच ट्रॉमा? नोबडी थिंक्स. आप घर पे घोड़ी पे बैठ जाइए, फिर उसके बाद वेन्यू पे एक बार फिर से गाड़ी से उतर के शगुन के लिए घोड़ी पे जरूरत क्या है घोड़ी पे बैठने की, जब इस जमाने में अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई है, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, वो इलेक्ट्रिक घोड़े आ गए हैं. क्या जरूरत है? पहले के जमाने में ये सब नहीं था ना. वो सोचना नहीं. उस जमाने में कैमल घोड़े और ऊंट होते थे, वो उसका यूज करते थे. आपका जमाना बदल गया, जमाने के हिसाब से चलो. बट I don't understand, you know, अभी भी वो पुरानी चीजें करना और किसी को हर्ट करके करना. करिश्मा, at every point of time हम जब भी कुछ करते हैं, you know, always think about the feelings of the other person or the other animal. Whenever we don't. Manvi, you and me are animal lovers now. That's why we think so sensitively. People are not.
इसीलिए मैंने ये लाइव किया है कि जिसके दिमाग में ये थॉट नहीं है ना, उनकी गलती नहीं है। हम दोनों और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, मेरी फ्रेंड है प्रीति से मॉइस, वो भी ये लाइव देख रही है, उसने एक्चुअली मेरे दिमाग में और मेरे दिल में सेंसिटिविटी डाली है एनिमल्स के प्रति। तो हम जो एनिमल लवर है, हम लोगों को समझ में आता है, जैसे आपने बोला कि घोड़ी फटाके भी सुन रहा है, वो बैंड बाजा भी सुन रहा है, जो लोग बैठे नाच रहे हैं दारू के साथ, उन लोगों का प्रेशर भी ले रहा है वो। ये हम दोनों जैसे लोग सोचते हैं। क्या लोग आजू बाजू नाच रहे रास्ते पे वो सोच रहे? नहीं सोच रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब लोग अब हम जब बात करेंगे और लोगों के साथ, और लोगों को मैं इकट्ठा करके बात करूंगी लोगों के साथ, तब उनके दिमाग में जाएगा, अरे हाँ यार, हमने सोचा ही नहीं। क्योंकि दिमाग में ऐसी चीजें जाती ही नहीं है मानवी। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरा खाना, मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, यही तो हो रहा है अब दिल्ली के अंदर। करेक्ट। आप सड़कों पर उतर के सब किसी को मार रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग सेल्फिशली। यू थिंक दिस स्पीशीज इज अगली, ये मेरे मेरी फैंसी कॉलोनी के लिए गंदा लग रहा है। ओ रियली, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट दैट अगर भगवान ने इसे बनाया है तो भगवान क्या बेवकूफ है? भगवान गंदगी बना रहा है? आप कैसे विचार लेके बैठे हो? You can't just call a species just menace or ugly. I mean, I've been hearing this thing, ये हमारी कॉलोनी की शोभा नहीं बढ़ाते। आई एग्री। मतलब मुझे ना बहुत सारे लोग, जब मैं बोलती हूँ ना प्लीज सपोर्ट इंडी डॉग्स एंड ऑल दैट, लोग मुझे लिखते हैं आपके पास तो एक शित्जू है। मेरे पास शित्जू तब आया जब मेरे में उतनी नॉलेज नहीं थी और मुझे गिफ्ट मिला था। अब गिफ्ट मिला है तो मैं नहीं चाहती थी कि एक जो बेसहारा है वो वापस चला जाए किधर, इसलिए मैंने उसको रखा मेरे साथ। पर गिवन अ चॉइस, क्योंकि अब मैं डॉग लवर हूँ, गिवन अ चॉइस, गिवन एन ऑप्शन, आई वुड लव टू अडॉप्ट मोर इंडीज। मुझसे मैं गिफ्ट दूंगी 100%। पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि मेरा कोको 6 साल का हो गया है और थोड़ा सा वो टेरिटोरियल है, तो अब मैं उसके ऊपर वो जुल्म नहीं कर सकती हूँ फॉर मी टू गेट अनदर डॉग एंड पेट हिम। बट मैंने हमेशा मेरे हस्बैंड को भी बोला है और मैंने ठान के रखा है, आफ्टर फ्यू इयर्स आई विल buy a land, buy something and make a nice farm for all the rescue animals, only and only rescue animals. No, we all learn. What I like about you is, Karishma, that not all of us are born with this knowledge, but we are open to change, open to accept. Growing up as a child, my father always got breeds. हमारे घर में हमेशा डाल्मेशियंस होते थे। वो भी वो माइंडसेट था कि घर में जब रखते हैं ब्रीड रखते हैं और सड़क पे डॉग होता है। बट विद टाइम एज अ फैमिली वी इवॉल्व्ड, वी रियलाइज दैट नो, ब्रीड्स के अलावा ये भी डॉग्स ही हैं, ये हमारे अपने हैं। और एक और सो वी चेंज्ड एज अ फैमिली एंड टुडे वी हैव इंडीज। एंड बड़े सारे लोग जो ये चीज जानते नहीं है दैट जब तक गोरे नहीं आए थे हमारे देश में, हमारे पास इनमें से कोई भी ब्रीड नहीं थी, हमारी इंडियन ब्रीड्स ही थी। बट आप तो आज भी, मेरा काम देखने के बाद भी करिश्मा, जो आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं वो भी मुझे घूम के बोलते हैं कि कोई ब्रीड हो तो बताना। यू नो हाउ मच इट हर्ट्स मी। आई मीन, मैं सारा दिन सड़क को उठा के ला रही हूँ और आप मुझे मैसेज करते हैं पिटबुल दिला दो, जर्मन शेपर्ड दिला दो। हमारी इंडियन, we have 9 Indian breeds which are getting extinct, which are exotic. Nobody wants them. Have you ever heard there is a Rajapalyam hound, there is a Rampur hound, there is Gati dog, and ऐसे बड़े सारे, इनमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, and they are going to die, they're going to finish. I have a Rajapalyam hound in my shelter. Wow. It's a Tamil breed and it was kept by royals, and it, the thin, tall, lanky ones. Yes, I have one. Breeder abandoned. He's not wanted. So, जो लोग आपको ब्रीड्स के लिए बोल रहे हैं वो अपनी देसी नस्ल के बारे में कितना जानते हैं? मेरा सवाल उनसे यही होगा। कह देना बहुत आसान है, बट लेट्स बी, आज से कुछ साल पहले सबके घरों में ब्रीड्स ही होती थी। ये एक नई अवेयरनेस आई है, लोग बदल रहे हैं। People are changing. Today, Zeenat Aman has, Madhuri Dixit has, Sachin Tendulkar has. So this is a change that has come about, and totally we should respect it rather than being negative about it.
Yeah, and yes, my friend is putting a very interesting topic here. She's saying it should be compulsory in schools. Kids should be sensitive towards dogs. You know, they should have this as a subject. If not a subject, at least take awareness kids में लाया जाए at a young age कि भाई एनिमल्स के साथ सही तरह से बर्ताव करना चाहिए, एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी की वो गलत है. दोज काइंड ऑफ थिंग्स अगर स्कूल में भी एक अवेयरनेस या तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे अगर कुछ should be ऐसा हो. sensitized. बचपन से ही सिखाना चाहिए. And I pity those parents. I've done that. Because I've gone to a few schools. I didn't have that awareness. तो Yeah. मुझे लिटरली 10 साल पहले या 12 साल पहले जब मेरी फ्रेंड ने मुझे डॉग गिफ्ट किया था, तब मुझे वो लगाव आया डॉग्स के साथ. तो जब तक मेरे पास डॉग नहीं तब मुझे लगाव आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे बचपन में किसी ने सिखाया नहीं था. बीइंग वेरी फ्रैंक, मुझे बचपन में किसी ने कुछ अवेयरनेस नहीं दी, ना मेरे ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे पापा ने, क्योंकि उनमें वो अवेयरनेस नहीं था. अब मुझे लग रहा है जब मेरे में अवेयरनेस है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे जो सड़क पे चल रहे हैं, उन लोगों को वो अवेयरनेस आए ताकि वो लोग अच्छी तरह से बिहेव करें एनिमल्स के, स्ट्रेस के साथ, बेसिकली जो रास्ते पे रह रहे. आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड स्ट्रे बिकॉज ये उनका घर है, ये सड़कें उनका घर है. हमारे लिए हमारा घर घर है, उनके लिए वो है, सड़क ही उनका घर है. And they are community dogs. Yeah. And last year, the Honorable Supreme Court declared this, that you cannot relocate them. And Honorable Supreme Court said that you have to feed them. Every colony, every RWA has to designate a section where dogs can be fed, where feeders can go. The time should be allotted. Then why women are still getting hurt and beaten up then? And these people are connected to politics, those who are doing so. Again, I keep thinking that where are we headed? The people who are supposed to run this country, the people who are supposed to execute these things, plan these things, today they're going door to door and they are saying don't feed them and beat the women and don't let them come here. I wish it's my dream for the last 2 years to reach Modi ji somehow. Me because too. it's time the law has to change. I mean, I wish you reach, because I know आप पहुंचे तो हम सारे animal lovers पहुंच गए वहां पे. अगर मैं पहुंची तो मैं आपको लेकर चल रही हूँ. Please. I really love hope man. that we reach Shri Narendra that Modi ji. man. I love that Because man. you know why I respect Modi ji? I respect him because when pandemic was happening, he came twice on the radio and he said मूक प्रजातियों का ख्याल रखना. मैंने सुना. मैं युवाओं को धन्यवाद करता हूँ जो इन मूक प्राणियों को खाना खिला रहे हैं. So I am little confused that उन तक ये बातें पहुंच नहीं रही. क्या वो अवेयर नहीं है? Why is he letting this happen? And आप जब बोल रहे थे कि इंसान जब पावरफुल हो जाता है वो दूसरी प्रजातियों को दबाता है, वो तो राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं. Ram never did this. No one would do that. The kind of India that he wants to create, I don't think so. उसके अंदर वो ये दहशत और खून खराबा चाहेंगे. मैं वही जैसे आपको दिन में भी बोल रही थी कि एक तरफ मंदिर की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना, which again I'm respecting. I'm not disrespecting anybody. So a man who's doing that, I don't think so. He would allow सड़कों पे कन्या का लक्ष्मी को मारा जाए, आदमी पकड़ के मारे. पहुंची, बदलाव जरूर आएगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि हम कैसे भी करके हमारे जो प्रधानमंत्री है उन तक पहुंचे. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी उनको, प्लीज एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाओ, नो मोर 50. हाँ, हम लोगों का ना इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. जिस तरह से आप सिलेब्स, फिल्म इंडस्ट्री से, because you get a lot of flack from people as well. जिस तरह से आप डॉग लवर्स बन के सामने आ रहे हैं और जिस तरह से हमारी आवाज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है. सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज के टाइम पे. इवन yesterday when Varun Dhawan fought for that dog that was beaten up in the clinic, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है करिश्मा. एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है. आई कैन बिकॉज ऑफ माई वर्क, आई थिंक I can again very confidently say that the number of dog lovers or animal lovers in this country are way higher than the haters. And if we unite
and we decide that change has to come, चेंज आएगा। ये कुछ लोग, क्योंकि एनिमल लवर्स और ये फीडर्स और वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहीं पंगे में नहीं पड़ना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि उनके बच्चों को नुकसान है। वो हर जगह से इमोशनल लोग चुपचाप दब के वापस आ जाते हैं, गाली खा के भी आ जाते हैं, बट और ज्यादा देर नहीं, और ज्यादा देर नहीं। अब आई थिंक वी ऑल नीड टू यूनाइट and bring about a change, a positive change. And when I talk, I always say that I'm looking at both sides. I'm not saying that, तादाद नहीं बढ़ी है कुत्तों की, तादाद बढ़ी है, बट उसमें कुत्ते का कोई हाथ नहीं है। अपनी तादाद तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए करिश्मा, मगर ये भी हमने गॉड बन के डिसाइड करा कि हम इनकी न्यूट्रिंग करेंगे। चलो हम भगवान बन गए, बट उसमें भी अब हम न्यूट्रिंग ना करें, वो पैसा गवन हो जाए, तो ये बेचारे बच्चों की तो गलती नहीं है ना कहीं। राइट, ऑफ कोर्स इनकी इच्छा, इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। We've never asked them. Yeah, but I see your shelter and I see all the dogs. They're so innocent, so cute. मुझे इतने पसंद है आपके the way you take care of them. मतलब मैं जब भी ऐसे स्क्रॉल करती हूँ और आपका वीडियो आता है, आपकी रील आते हैं, मैं रुक जाती हूँ और मैं 2-3 बार देखती हूँ आपके रील्स एंड आपके वीडियोस। Thank you. I'm speechless right now. The I way don't know you what. take care, seriously, Manvi. We need more people like you in Thank you. our country who I- thinks and who fights for them. एक They're होता है dog lover, एक होता है dedicated. You've dedicated your life to them and for them. Really, I would say on live, God bless you, and I want more people like you. Thank you so much. मेरी जिंदगी का मकसद ये है, and the last 2 years, there's not been a single day when I've not prayed to God that give me more strength and show me the way. I want that dignity back. Yes. I want that dignity back. That's it. Because ये कचरा नहीं है, ये nuisance, menace, गंदगी. It hurts me. When I hear this, it really hurts me. It hurts me too. And it's in Bombay also. I mean, the other day मैं इधर खार स्टेशन के आजू बाजू गई थी, एंड गायों को जिस तरीके से बांध कर रखते हैं वो लोग, ना खाना देते ना कुछ देते। फिर मैंने उतर के गाड़ी से उतर कर खाना दिया, घास दिया, थोड़ा सा पानी दिया। हम लोग बोलते हैं हमारे कंट्री में गाय हमारी माता है, कैसे ट्रीट होते हैं गाय रास्ते पे, वो देखना चाहिए लोगों मैं को। आपसे एक सवाल पूछूं, एक आपकी फ्रेंड ने आपको 10 साल पहले थोड़ा सा करा, हम लोग गौ माता बोलते हैं, और अभी तो आप तो बॉम्बे में बैठी हैं और मैं दिल्ली में बैठी हूँ। दिस इज एन एग्रेरियन कंट्री एंड वी डोंट नो गाँव वगैरह में क्या हाल है। जी। आपने कभी इस माता की क्रिमेशन या बरियल का कहीं सुना है? नहीं। What did we do? No one ever thinks that ultimately what happens to them. If we really considered her mother, and we grew up on her milk, and we pray to her, then there would have been burials or crematoriums for her all over India. Totally. So now, for the last 2-3 months, आप कुत्तों की बात करती है, आपको पता है गाय कितनी बड़ी न्यूसेंस है। वो बाइक पे जा रहा था रात को, काली गाय दिखाई नहीं दी, लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से गाय बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है जो सड़कों पे घूम रही है। These kind of messages I get. So obviously अब कुत्ता क्या, उसके बाद गाय, उसके बाद बंदर, उसके बाद जो जानवर दिखेगा, आप बस इसी तरह से अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना ये बोल के कि ये मुसीबत है। वो बेचारी दूध नहीं दे सकती, उसको उठा के आपने हाईवे पे फेंक दिया, वो आपके लिए अब मायने नहीं रखती, और उसके बाद गाली भी वही बेचारी खाएगी और जुल्म भी वही सहेगी। वही तो, उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाए बेचारी। या तो सरकार कुछ बना दे उनके लिए, एक लैंड बना दे जहां वो लोग घास चरे, कुछ तो करे। रास्ते पे छोड़ दोगे तो उनको कहाँ दिमाग है कि हमको जाना है दिल्ली, हमको जाना है मुंबई, हमको जाना है रायपुर, और उनको कुछ पता ही नहीं। सरकार जो भी करे उसमें ऑडिट होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू करिश्मा, we do have funds and we do have infrastructure and units to sterilize dogs in Delhi. आप ये देखो 13 यूनिट्स है दिल्ली में, बट आज आम इंसान भी स्टरलाइजेशंस करा रहा है, बेचारे फीडर्स भी करा रहे हैं, एनजीओज भी करा रहे हैं। अब तक तो दिल्ली की पॉपुलेशन आधी से भी कम हो जानी चाहिए थी कुत्तों की, तो 1.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई?
वो यूनिट्स कर क्या रहे हैं? Why isn't anybody really talking about the root cause? And I'm telling you, I've gone inside a lot of units. They're Kasai Khanas. They're Kasai Khanas. I mean, I'd rather have the child die on the road in a car accident than go for these sterilizations. And I'm going to get a lot of negativity now for saying all this, because you're not supposed to say all this. You have to be very careful. And so it's high time that the government, हमारी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, उसके नीचे एमसीडी आता है एंड एमसीडी यूनिट्स आते हैं जो इनके स्टरलाइज करते हैं. चेक करिए हुआ क्या. दोनों तरफ तो नहीं बेवकूफ बना दिया, टैक्स पेयर्स का भी बेवकूफ बना दिया, कुत्ते का भी बेवकूफ बना दिया. We are all educated people now. Let's just understand the situation. Blaming dogs, blaming animals, cursing them is not the right way to go. And killing is never a solution. Never. Never. आज ऐसे तो हमारी भी आबादी बढ़ती जा रही है इंसानों की. कल को बड़ी कम जगह बचेगी रहने की और बहुत कुछ होगा, तब क्या करेंगे? टोटली आई होप ये अवेयरनेस इंसानों में, लोगों तक पहुंचे, ताकि हम एक स्टेप उठा पाए और हम अपने लिए ये जो सड़कें हैं वो ब्रीदेबल करे, या और डॉग्स के लिए भी करे, देन दे वी ऑल कैन को एग्जिस्ट टुगेदर. Yes. और जैसे आप स्टरलाइजिंग की बात कर रहे हो, आई होप हम वो एक अवेयरनेस वहां भी पैदा करें कि हमको डॉग्स को, जो हमारे इंडी डॉग्स है, उनको स्टरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे की ग्रोथ स्टॉप हो सके, ताकि वो लोग उतना सफर ना करें. It's very doable. Netherlands has achieved it. Wow. हम लोगों ने 2000 में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, but we adopted the World Health Organization policy. Okay, because Netherlands has achieved it, and there are many other places. I think Goa में भी better हुआ है, and this comes as 5-year, 10-year plans, and इसमें बड़ा simple है. You got to map out the areas. The way of catching dogs is absolutely humane, and rabies vaccination uspe you microchip the dogs once they are operated. All of those facilities and things are there. We've adopted the policy, but our units are not implementing them. Now Let's you hope tell me we will. हम लोग, now you tell me, आप गांव से साधारण लड़कों को बुलाते हैं, ये आपके ड्राइवर्स हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले और डॉग कैचर्स, उनको फोन पे, do you know we have an app, 311 app, where you go, the dog को पकड़ा, वहां उसकी फोटो खींची, उसकी लोकेशन ली, उसको एंटर करा सिस्टम में, वो 4 दिन बाद ऑपरेशन पोस्ट केयर के बाद उसी लोकेशन पे छोड़ा जाएगा. Those are uneducated people, they don't know how to use the app. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? When I sat with our mayor of Delhi and I spoke about all these things, no one was very happy that I'm actually wanting to strengthen the program. I said we should have a half an hour, 1 hour class where they are taught how to use the app and how they're supposed to catch the dog. You've seen me, I catch the dogs with nets. I don't use those nets plain. It takes about an hour to learn. What is it? This is not rocket science. You've hired them for that. I spoke to one of the unit guys and I said, यहाँ से मेरे गांव से 5 कुत्ते उठा लिए मुझसे बिना पूछे, ऐप में भी नहीं आया. अरे मैडम, गांव के लड़के हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करती हो? So I said, no, but this is your unit. It's your responsibility. You got to train. I run my NGO and it's my responsibility. How my staff is working is totally, जो मेरा culture है वो वही follow करेंगे. Totally. And you are getting paid by the government. Yeah. You are getting paid by the government to do this. And this awareness in people has to come because they are the real taxpayers and they should know that ये reality है. Totally. I'm just hoping that it all becomes better for the animals. जो भी हो, whatever category, it becomes better for our animals, and I hope एक बदलाव आए आपके जरिए, मेरे जरिए, किसी के भी जरिए, मतलब एक बदलाव आए तो बहुत खुशी मिलेगी हम सबको, एंड अवेयरनेस पैदा होगी. सो आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. होगा.
I'm very hopeful. I'm very, very hopeful because now I'm seeing this new wave where everybody is coming out and talking about it, asking for the law to be changed, Totally. standing in unison, to protect these animals. And जैसे मैंने कहा आप लोगों का साथ मिल रहा है, जी. which gives me a lot of hope, lot of hope. I mean, there are millions who would be wanting to talk to Karishma Tanna for 2 seconds, and I get her live for my voiceless babies, for India's voiceless babies. I'm honored, I'm blessed, I'm really thankful to you. People don't know what a beautiful soul you are. आपको लोग आपकी pictures में और posts में देखते हैं, but आपकी असलियत जो है, you're such a beautiful soul. I hope I get to meet you and you come and visit my children. I will. That would. I am waiting. I told you the day I visit Delhi. I am coming. हम आपको एयरपोर्ट से किडनैप कर लेंगे, चुपचाप भागना मत, ठीक है? चुपचाप Done. सोचना भी मत, ठीक है? जी, for sure. But Thank really you, lovely Manvi. of Thank you. No, my Thank honor. you for creating so much of knowledge and awareness and fighting for the animals. My God, thank you and God bless you. I swear. Thank you. God bless you too. And I hope 2024 we give each other good news for our kids, for our voiceless babies, and मोदी जी को मिलने का मौका मिल जाए. मिलेगा 2024 में हम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे on this topic, for this topic. ठीक है, ठीक है. Karishma, love you so much. Love you, man. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye.